Hello, welcome back, all of you. I hope all of you are doing good. And my name is Prachi Soni. I am from Gyanji Senior Secondary Public School, Shikohabad District, Firozabad. And we are here to study class 12th geography. And this is NCRT, and this is a revision series. So we will be a little fast in this series. If you want to go for a detailed course, you can refer to the parallel series which is going on detailed geography of India, people and economy. So in this series, we have already completed the first 4 chapters from the book Fundamentals of Human Geography. So if you're new to this series, I would request you to please go through the previous videos first and then come and watch this one to have a relate. And this is a continuation of chapter number 5, that is primary activities. We have already done 2 parts of this chapter, and this is the part 3rd. So this is part 3. So if you want to watch this chapter only, so please refer to the previous videos. And in the last class, we talked about dairy farming, we talked about mixed farming, we begin talking about intensive subsistence agriculture, in which we talked that how there are 2 types of intensive subsistence agriculture, one which includes production of rice and one which excludes production of rice and includes all other types of crops including wheat, barley, rye and everything. Then we talked about the plantation agriculture. Why plantation agriculture was started on the first place was because the Europeans, the colonies Europeans made, they started doing profitable agriculture there, and plantation agriculture happened to be a profitable agriculture. So they started with this. In this, some crops which are commonly grown are tea, coffee, rubber. Then extensive commercial grain cultivation. The term itself says commercial and extensive. So first of all, it is happening on the large scale and commercial, that most of it is not for subsistence, not for sustenance of the family, but for making profits. So that is why it is known as extensive commercial grain cultivation. In this cultivation, one specific thing they mentioned was that in this case, most of the agriculture is mechanized, which means machinery, the use of machinery is very prominent. And in this case, the yields per acre are low, but yields per person are high, which again means that a lot of people are not working together on the same field. So that is why the return is 20 kg. So there is the only 1% or 2% having the benefits of that. So later, after that, we talked about mixed farming, that how agriculture and animal rearing are done together. We talked about certain concepts of intermixing, crop rotation, intercropping, and irrigation facilities, and all this. Next, and in this is particularly there is a very extensive use of chemical fertilizers, and we talked about then dairy farming, as the word already suggests. In this, milk animals. Now this is the milch. It is not pronounced as milch but as milk animals. All the animals which are capable of giving milk and milk related products are known as milk animals. So this includes the highly scientific technologies. Then we talked about Mediterranean agriculture, which is practiced around the Mediterranean Sea, in the countries north to Mediterranean Sea and south to Mediterranean Sea and some other parts of the world. In this particular type of agriculture, one most important thing was viticulture, that is grapes production, which is again used for wine, production of wine, and how the citrus fruits are grown here. Today we will start talking about market gardening and horticulture. Market gardening, which means that when you are growing tomato, gardening, horticulture crops, which generally includes eatable things, not crops per se. So market gardening and horticulture specializes production in high value crops. Basically, in this case, we are producing the high value crops which have a value, very high value, which includes vegetable, fruits as well as flowers. तो तीनों चीज़ें जो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये तीनों चीज़ें हम किस कैटेगरी में ग्रो करते हैं? मार्केट गार्डनिंग में ग्रो करते हैं.
सोनली फॉर द अर्बन मार्केट्स। फार्म्स जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं साइज में और वहाँ लोकेटेड होते हैं जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है वो अच्छी होती है। अगेन क्यों, आपने अपने खेत में टमाटर उगा दिए, टोमेटो उगाए नाउ, अब वो टमाटर अगर आपने 2 दिन 10 दिन निकालने के 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर नहीं मार्केट तक पहुँचाए तो आपके टमाटर ख़राब हो जाएंगे। तो विच मीन्स इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो अगर एक बार प्रोडक्शन हो गया है तो वो वेस्ट ना हो और टाइमली अपने सोर्स जगह पर मार्केट में पहुंच जाए। अर्बन सेंटर्स जहाँ पे जो कंज्यूमर्स हाई इनकम ग्रुप, यानी कि अब टमाटर खाने वाले लोग भी तो होने चाहिए, तो हाई इनकम ग्रुप कंज्यूमर्स लोकेट करते हैं वहाँ पे ज़्यादा चलता है। ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब बहुत सारी लेबर लगती है और हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इसमें हम लोग इरिगेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग को यूज़ किया जाता है इन दी कोल्डर रीजन। ग्रीन हाउसेज, व्हाट इज ग्रीन हाउसेज? ग्रीन हाउसेज एक इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है? जो हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं जैसे कि CO2, CH4, जो कि एक ब्लैंकेट की तरह रिएक्ट करती हैं। ये ब्लैंकेट क्या करता है? ये बाहर से हीट अंदर आने देता है, सन से जो हीट है उसको आने देता है, पर जो टेरेस्ट्रियल हीट है, मतलब जो अर्थ हीट छोड़ता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। सो ये हीट ठंडे रीजन्स में ये ज़रूरी होती है। ग्रीन हाउस चैम्बर्स बना दिए जाते हैं जिसके अंदर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जिससे हीट एक बार अगर अंदर आ जाती है तो वो काफ़ी टाइम तक वहाँ ट्रैप रहती है, जिससे जो प्लांट्स हैं उनको कंटिन्यूअस हीट मिलती रहती है टू ग्रो। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड डेंसी पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है आपका? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, मेडिटेरेनियन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न USA में और नीदरलैंड्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्पेशली जो ट्यूलिप्स होते हैं वो मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप में ग्रो किए जाते हैं। वो रीजन जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, इस फार्मिंग को हम ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। ट्रक फार्मिंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो डिस्टेंस होता है, अभी आप टमाटर नॉर्मल कहीं भी आपको खेत में उगे हुए नहीं दिखेंगे, इनके जनरली फार्म्स और ऑरेंजेस, टमेटोज, इनके जनरली फार्म्स होते हैं एंड देन वो फार्म से आपके पास पहुंचते हैं। तो ये जो डिस्टेंस कवर होता है फ्रॉम फार्म टू योर मार्केट, वो कवर करने के लिए ट्रक्स को यूज़ किया जाता है। ट्रक जो आपका व्हीकल है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ट्रक फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर, नो, ट्रक फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज मिक्स फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, बिकॉज इसमें ट्रक की इन्वॉल्वमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग के अलावा मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज फैक्ट्री फार्मिंग। तो मार्केट गार्डनिंग के अलावा एक नया डेवलपमेंट आया है जिसको कहते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। इसमें लाइव स्टॉक, पर्टिकुलरली जो पोल्ट्री और कैटल होता है, उनको रियर करा जाता है स्टॉल्स एंड पेल्स में, और फिर उनको मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेन, जिन पे काफ़ी डिजीज वगैरह पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग, मशीनरीज वगैरह में, ऑपरेशंस में, वेटनरी सर्विस यानी कि डॉक्टर की सर्विसेज, हीटिंग, लाइटिंग, ऑल दिस। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पोल्ट्री फार्मिंग का ये होता है कि जो कैटल रेयरिंग है इज ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। ब्रीड सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़रूरी होता है। आप एक डेयरी चलाना चाहते हो तो आप गाय खरीद के लाओगे, सो दैट काउ शुड बी ऑफ अ वेराइटी दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क। आप जनरली कोई भी काउ को उठाकर अपने डेयरी में नहीं ला के रख सकते हो। यू नीड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ काउ विच प्रोड्यूसेस मोर मिल्क सो दैट आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। तो ब्रीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साइंटिफिक ब्रीडिंग कि आप एक बार ले आए, आपने उनकी ब्रीडिंग कैसे कराई। साइंटिफिक ब्रीडिंग का बहुत सिंपल सा ये मतलब है कि साइंटिफिकली ये ब्रीडिंग हो, बिकॉज अगर नेचुरली होगी तो म्यूटेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू साइंटिफिक ब्रीडिंग। म्यूटेशन क्या होता है? कुछ ऊपर नीचे हो जाना, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। तो आप और मैं अपने पेरेंट्स से अलग क्यों लगते हैं? बिकॉज ऑफ DNA का म्यूटेशन। So, जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू दी फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है इनको हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एग्रीकल्चर के टाइप्स देखे, अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर अगर फार्मिंग कर रहे हैं, एक जना मिलकर फार्मिंग कर रहा है, बहुत सारे ग्रुप सोसाइटी जैसे कि कोऑपरेटिव
रियल जूस पीते हो, आप ट्रॉपिकाना जूस पीते हो, ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं. सो इसकी फार्मिंग कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है फार्मिंग करने के पीछे, उसकी बेसिस पे भी डिविजन होता है. farmers own their farms and various policies of government which help to run these farms. और ये फार्म्स को रन करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग. A group of farmers from a cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming. तो क्या होगा इसमें, कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स क्या होंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, एक सोसाइटी बना लेंगे जिसमें वो बोलेंगे कि हम अपने सारे रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप और आपके 5 फ्रेंड्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लोगे. इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, आप बोलोगे मैं खरीद लेती हूँ एक हैंडपम्प, दूसरा बोलेगा मैं खरीद लेता हूँ एक ट्रैक्टर, तीसरा बोलेगा मैं खरीद लेता हूँ एक सोइंग मशीन. इस तरह से आप सब लोगों ने 5 अलग अलग मशीन खरीद. फिर क्या होगा, इन मशीन्स को आप पूलिंग करोगे. पूलिंग कैसे, शेयरिंग करोगे. जब आपको इरिगेशन की ज़रूरत है आप मुझसे मशीन बोरो कर लेना, जब मुझे हार्वेस्टिंग की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मशीन बोरो कर लूँगी. तो इसको कहते हैं पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज. ये आप वॉलेंटरली करते हो, ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं बचेंगे, मशीन का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाएगा और काफ़ी प्रॉफिटेबल फार्मिंग होगी. भाई आप 10 लाख रुपए अगर सारी मशीन खरीदने में लगा देते, अभी आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख में आ गई, सबकी 1-1 लाख में मशीन आ गई, बच गए पैसे. तो अब आप जो ग्रो करोगे उससे आपको ज़्यादा अर्निंग. जो इंडिविजुअल फार्म्स हैं वो भी इंटैक्ट रहते हैं क्योंकि आपने बस मशीन की पूलिंग कर रहे हो, आप सिर्फ रिसोर्सेज को उसको शेयर कर रहे हो, लैंड को शेयर नहीं कर रहे हो. तो आपका लैंड इंटैक्ट रहता है, कोई उसको छेड़ाखानी नहीं करता है. फार्मर इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव. सो एंड फार्मिंग आप क्या कर रहे हो वो कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है, ना कि आप क्या ग्रो कर रहे हो. या फिर आपकी खेती, आपका लैंड नहीं चाहिए किसी को भी, आप जो ग्रो कर रहे हो वो मैटर करता है. Cooperative societies help farmers to procure all important inputs for farming, sell the products at the most favorable terms and help in processing quality products at cheaper rates. ये जो cooperative societies होती हैं ये क्या करती हैं कि farmers की मदद करती हैं कि अभी जैसे आप 5 farmers ने तो cooperative society बना ली, बट आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में और भी ज़्यादा farmers हैं. तो आपकी cooperative society क्या कर सकती है, आप उनको हेल्प कर सकते हो सारे जो भी फार्मिंग के लिए सामान चाहिए उन सबको कलेक्ट करने में. कहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाके उनको अपने फार्मिंग इक्विपमेंट सेल करने चाहिए, और प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स, और किस तरह से जो चीपर रेट्स पे आप जो मिल रहा है आप उसमें अच्छी क्वालिटी कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव्स इनको सजेस्ट करती हैं. जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये बहुत सेंचुरी अगो, मतलब कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ था यूरोपियन कंट्री जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में. डेनमार्क में ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज की डेट में हर एक फार्मर किसी न किसी कोऑपरेटिव का पार्ट है. तो डेनमार्क इज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है ये कोऑपरेट फार्मिंग. फिर हम बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग की. द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर. तो इसका बेसिक क्या है कि सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी एक लैंड है वो सबकी है, सोशल ओनरशिप है, सबकी, सब ओन करते हैं उसको. कलेक्टिव लेबर, मिलकर उस पर काम करेंगे. जो कलेक्टिव फार्मिंग है इसको कोलकोज मॉडल भी बोला जाता है, जो कि सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, रशिया का जो पुराना ग्रुप था उसने इंट्रोड्यूस करी थी टू इम्प्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग सेल्फ सफिशिएंसी. तो जो पुराने मेथड चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे. दैट इज़ वाई सोवियत यूनियन केम अप विद द आइडिया ऑफ कोलकोज, दैट इज़ योर कलेक्टिव फार्मिंग, जिसकी वजह से दे एक्सपेक्टेड कि जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे आएंगे और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. द फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड. फार्मर्स ने जितने भी उनके पास रिसोर्सेज थे, लैंड हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, लेबर हो गया, सबको पूल करेंगे, सबको शेयर करेंगे. हाउएवर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी मच स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स. बेसिकली इसमें क्या होता है, आप अपने जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं आप इनको आई एम कमिंग फ्रॉम अ कंपनी ऑफ रियल जूस बनाती हूँ. मैं क्या करूँगी, मैं आपके कुछ लोगों को बोलूँगी कि मैंने ये लैंड ले लिया है, मेरे पास ये ज़मीन का टुकड़ा है, मुझे फार्मर्स चाहिए इसमें काम करने के लिए. सो आप लोगों को मैं सब कुछ दूंगी, आपकी सब लेबर आप सब मिलके शेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मुझे आपको ये ग्रो करके देना है.
पर इसमें मैं आपको भी कुछ लैंड होल्डिंग दूंगी कि क्योंकि आप मेरे जगह पे काम कर रहे हो तो आप इतना लैंड का हिस्सा ले सकते हो जिसमें आप कुछ भी खुद के लिए भी ग्रो कर सकते हो. So that was about agriculture, which was one of the most important primary activities में आता है ये. हम यहाँ पे दो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे. दैट इज़ वन इज़ योर एग्रीकल्चर एंड अनदर इज़ योर माइनिंग. So we have already talked a lot about एग्रीकल्चर के टाइप्स, हंटिंग गैदरिंग की बात कर ली हमने, एग्रीकल्चर की बात कर ली ना. एग्रीकल्चर किस किस ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से होता है, वी टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइनिंग. माइनिंग में बेसिकली मतलब होता है, माइनिंग इज रिलेटेड टू मिनरल्स. जो हमारे ज़मीन के अंदर मिनरल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन को, उनके बाहर निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. द डिस्कवरी so the discovery of minerals in the history of human development. So the discovery of minerals in the history of human development is reflected in many stages in terms of copper age, bronze age, iron age. तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जैसे जैसे हमको मिनरल्स मिलने लग गए वैसे वैसे हमने जो एज थी उसको डिफाइन करना शुरू कर दिया. यानी कि जब हमने सबसे पहले कॉपर ढूंढा तो हमने उसको कॉपर एज का नाम दे दिया. फिर जब हमको ब्रॉन्ज मिला तो हमने उसको ब्रॉन्ज एज का नाम दे दिया. फिर फाइनली जब हमको आयरन मिला तो हमने उसको आयरन एज का नाम दे दिया. सो दैट इज़ हाउ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे लिए थ्रू आउट दी हिस्ट्री. And we have actually named civilizations and parts of history on the basis of these minerals. So ये जो minerals हैं ये हम इनको बहुत एशियन टाइम से यूज़ करते हैं. जनरली ये टूल्स बनाने के, यूटेंसिल्स बनाने के और वेपन्स बनाने के काम आता है. टूल्स यानी कि आप जो सामान, यूटेंसिल्स बर्तन, और वेपन्स जो आप ये तलवारें हैं, स्पेयर हेड्स वगैरह. द एक्चुअल डेवलपमेंट जो माइनिंग का था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ और उसके बाद से अभी तक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. मतलब माइनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी एंड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी क्रूशल एंड वी कैन नॉट एक्चुअली फंक्शन विदाउट मिनरल रिसोर्सेज. So all the economies, all the societies needs mineral and actually the fight all over is about the minerals. तो जहाँ भी हमको, जिस भी जगह में हमको minerals मिलना शुरू हो जाएगा, we would start fighting for it. For example, चाइना ने अपने कंट्री के नीचे साउथ चाइना सी है, वहाँ पे they started making artificial islands बनाना शुरू कर दिया उन्होंने. आर्टिफिशियल आइलैंड्स, हाँ दैट इज़ ट्रू. वो लिटरली ओशन में मिट्टी डाल के आइलैंड्स बना रहे हैं. और ये जो आइलैंड्स उन्होंने बनाना शुरू किया है ये क्यों कर रहे हैं? मिनरल्स, रिसोर्सेज, एवरीबडी वांट्स रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के लिए दे आर डूइंग दिस. सो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो माइनिंग की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग दो फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है. पहले हमारे कुछ फिजिकल फैक्टर्स, देन हमारे आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में आता है आपका साइज़ क्या है, आप जो माइनिंग कर रहे हो वो कितनी बड़ी है, कहाँ हो रही है. ग्रेड यानी कि टाइप ऑफ मिनरल वहाँ से कितना मिल रहा है, मतलब आपको क्वालिटी कैसा मिल रहा है उस माइनिंग में से. एंड द मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ द डिपॉजिट्स. और मोड ऑफ अक्रेंस यानी कि जैसे आपने एक माइनिंग खोदी, वहाँ पे आपको एक जगह पे तो आयरन फ्री स्टेट में मिल रहा है. जनरली आप देख रहे हो तो आपको आयरन मिल रहा है, बट एक जगह पे आयरन मैग्नीशियम के साथ मिलकर मिल रहा है, मिक्स्ड फॉर्म में. तो मोड ऑफ अक्रेंस मतलब किस तरीके से आपको वो मिनरल मिल रहा है. तो ये तीन फिजिकल चीज़ों पे जो डिपेंडेंट होता है. वन इज़ योर साइज़, की उस माइनिंग होल्डिंग का साइज़ क्या है. ग्रेड यानी कि क्वालिटी कैसी मिलेगी. और मोड ऑफ अकरेंस विच मीन्स कि किस फॉर्म में अकर हो रही है. इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिमांड क्या है मिनरल की. आयरन, जैसे कि सबसे आयरन माइंस बनाने की कोशिश सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि उसकी डिमांड है. अभी कोई ऐसा मिनरल हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमको आता है यूज़ करना ना कुछ, तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है उसको यूज़ करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में थोरियम, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए थोरियम और यूरेनियम दोनों चाहिए होता है. थोरियम तो हमारे पास बहुत है, यूरेनियम भी हमारे पास है, बट इट इज़ नियर बाय दी माउंटेनियस रीजन. तो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस यूरेनियम को निकालने के लिए. सो सिमिलरली इस माउंटेनियस रीजन में ऑयल की अवेलेबिलिटी है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपका डिमांड क्या है, क्या आपके पास वो मिनरल निकालने की टेक्नोलॉजी है या नहीं है. एंड कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. और मिनरल वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगर मिनरल निकाल भी लिया तो मिनरल एज इट इज़ थोड़ा, जिस तरह से माइन से मिनरल निकलता है एज इट इज़ यूज़ नहीं होता. आयरन की प्रोसेसिंग होती है, पूरा स्मेल्टिंग वगैरह का बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो आयरन के लिए यूज़ किया जाता है. सो क्या वो माइन करने के बाद वो मिनरल के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है,
या नहीं बन सकता है, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे माइनिंग डिपेंडेंट होती है। फिर मेथड्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के तरीके क्या क्या हैं, डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ अक्रेंस। मोड ऑफ अक्रेंस मतलब किस फॉर्म में वो हमको मिल रहा है और ओर का नेचर कैसा है। माइनिंग दो तरीके की होती है, एक होती है सरफेस माइनिंग और एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। जो सरफेस माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। इसमें ये सबसे आसान और सबसे चीपेस्ट तरीका है माइनिंग करने का। ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशन, इक्विपमेंट रिलेटिवली लो होती है इस मेथड में। द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड, और जो आउटपुट जो रिजल्ट निकलता है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलता है और फटाफट से रिजल्ट निकल के आ जाता है। इसको है क्या, ये कुछ नहीं है, ये बड़ी सी ज़मीन थी, आपने उसमें गड्ढा खोद दिया और आप उसमें से साइड्स में से माइनिंग कर रहे हो, सामान अपने मिनरल्स निकाल रहे हो। इसको ओपन कास्ट, कास्ट का मतलब हो गया, कास्ट मतलब होता है किसी चीज़ में डेंट मार देना। सो ओपन कास्ट मतलब आपने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया है ग्राउंड में, एंड नाउ यू आर माइनिंग उस जगह पे। तो ऑब्वियसली सेफ्टी का कुछ नहीं है, इशू नहीं है कि ऊपर से वो आपके ऊपर गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा। सो सेफ्टी इशूज़ बहुत कम होते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, गड्ढा खोदने में क्या कॉस्ट है, गड्ढा खोदने में कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। दूसरी जो टाइप की आपकी है जिसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं या फिर जिस इज़ नोन एज अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। इसमें अभी क्या होगा, इसमें माइनिंग बहुत नीचे होगी, मतलब सरफेस माइनिंग में तो क्या हो गया, आपको इफ दिस इज द पीस ऑफ लैंड तो आपको यहीं ऊपर ऊपर आपने थोड़ा सा 100 मीटर का गड्ढा खोदा और आपको माइनिंग मिल गई। 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा बोल रही है, 50 मीटर का गड्ढा खोदा और आपको मिनरल्स मिल गए। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होगा, जो मिनरल्स है ना वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। तो यहाँ तक आने के लिए, यहाँ मतलब कम से कम 1 किलोमीटर नीचे, तो यहाँ आने के लिए अभी आप 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा नहीं खोद सकते। सो हम क्या करते हैं इसके लिए शाफ्ट माइनिंग, हम इसमें एक वर्टिकल गड्ढा खोदते हैं, वर्टिकली इसको खोदते हैं और नीचे जाके फिर माइनिंग करके आते हैं। इस केस में क्या होता है, कभी कभार अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव माइनिंग, क्योंकि मशीन है, ऐसे नहीं आयरन हाथ में आ जाता है घिस के, मशीन्स यूज़ होती हैं, तो कभी कभार नीचे जो हैवी मशीन्स यूज़ हो रही हैं उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लैंड है जिसको आपने नीचे से खोखला कर दिया, आप यहाँ से गड्ढा खोद के नीचे गए, आपने इसको यहाँ से खोखला कर दिया, ये नीचे गिर सकता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग आपके नीचे काम कर रहे होंगे वो सब, उनकी सबकी डेथ हो सकती है। सो ये जो और जब बहुत सरफेस के नीचे होते हैं तब हम अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड की प्रैक्टिस करते हैं। इस मेथड में वर्टिकल शाफ्ट यानी कि वर्टिकली गड्ढा खोदा जाता है फ्रॉम अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट टू रीच द मिनरल्स को रीच करने के लिए। Minerals are extracted and transported to surface through these passages बनाए जाते हैं। इसमें हमको काफ़ी अच्छे लिफ्ट्स, डिज़ाइंड लिफ्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि मिनरल्स को ऊपर तक लाएंगे। ड्रिलिंग मशीन्स की ज़रूरत होती है, व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, वेंटिलेशन सिस्टम ज़रूरी होता है बहुत, ताकि सेफ्टी और एफिशिएंसी बने रहे लोगों की जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये मेथड काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर से बहुत गर्मी निकलती है, बहुत पॉइजनस गैसेस निकल सकती हैं, फायर, बाई चांस फ्लड आ जाए, बहुत बारिश आ जाए तो माइनिंग पूरी ख़राब, आपका जो पूरा आपने गड्ढा खोदा हुआ है वो पूरा भर जाएगा पानी से। सो एंड केविंग इन लीड टू फेटल एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। सो अ होमवर्क फॉर यू टू फाइंड आउट क्या इंडिया में कभी ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं या नहीं। ओके, सो प्लीज़ डू फाइंड आउट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो अपने आप को कोशिश करने की वो माइनिंग ना करें। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग स्टेजेस प्रोडक्शन ड्यू टू बहुत, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेबर कॉस्ट होता है। वाइल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आज भी अपने इन माइनिंग रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, जो हमारी 50% अर्निंग्स होती हैं वो हमारी इन माइनिंग मिनरल से ही आती हैं। तो जो हम मेथड्स ऑफ माइनिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है विच क्लियरली टेल्स यू कि देखो जो साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो गड्ढा है दैट इज़ ओपन, सीधा गड्ढा खोदा, माइनिंग करी और निकाल लिया सामान। बट फिर जो साथ में जो शाफ्ट माइनिंग बता रहा है, बहुत डीप डाउन गड्ढा खोदा जाता है, फिर साइड्स में जाके माइनिंग करी जाती है, लिफ्ट्स वगैरह लगाई जाती है सामान को ऊपर लाने के लिए। सो दिस इज़ about this chapter, and we have talked about various features of primary activities and how it is done in our world, not just India but around the world.
and we learned some things about mining, types of mining, open shaft, underground. So I hope you like the session. And if you like the session, please hit the like button. Do subscribe the channel and leave your comments, compliments, and suggestions in the comment section. Thank you and have a nice day.